السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے محبت کا طلسم ایپیسوڈ نمبر 2۔ رفتہ رفتہ انیلا بھی تاگوش کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ کالج سے آنے کے فوراً بعد وہ کمرے میں گھس جاتی اور اس کا انتظار کرتی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے خیالوں میں کھو جاتی۔ پڑھائی سے اس کا دھیان بٹ گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا اور گھنٹوں اس کے پاس پیار محبت کی باتیں کرتا۔ انیلا مدہوشی سے اسے سنتی اور دیکھتی رہتی، لیکن کچھ دنوں سے وہ غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت بے چین تھی۔ اس کا کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بلائے۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی کے ذریعے بھی اس نے اسے بلانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا۔ آج رات بھی وہ اس کی یاد میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم پرجوش ہو کر آگے بڑھی۔ تاگوش، یہ تم ہو نا؟ سامنے آؤ، کہاں چلے گئے تھے؟ میری آنکھیں تمہاری راہ تکتے تکتے تھک چکی ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی۔ مجھے اپنی محبت میں دیوانہ کر کے خود تم کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن وہ سایہ ایک جگہ مجمد رہا۔ کوئی جواب اس سائے سے موصول نہ ہوا۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ ایسے چپ کیوں کھڑے ہو؟ چند لمحے وہ کھڑی انتظار کرتی رہی کہ اچانک وہ سایہ ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ انیلا، جو اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی، ایک دم چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے ماں باپ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا انیلا؟ اس کے والد پریشانی سے بولے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر فل والیوم میں چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ خاموش ہو جاؤ۔ کچھ نہیں ہوا، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہیں یوں سامنے دیکھ کر وہ فوراً اپنی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی امی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کرانے لگی۔ چپ کر جاؤ میری جان، تم ہمارے ساتھ کمرے میں چلو، آج رات تم وہاں سو جاؤ۔ اس کے والد اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ انیلا کی امی نے اپنے شوہر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، اور انیلا کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ دن کا وقت تھا، دھوپ نے ہر طرف گھیرا کیا ہوا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے 3 گنڈے ڈنڈوں کے ساتھ وہاں آ گئے اور آتے ہی اس پر جھپٹ پڑے۔ وہ دیہاتی کڑیل جوان تھا۔ پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ کیا ہو رہا ہے، پھر جلد ہی خود پر قابو پا کر وہ پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ ڈنڈوں کا وار کر رہے تھے، وہ لاتوں اور گھونسوں سے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک گنڈے سے کسی نہ کسی طرح ڈنڈا چھین ہی لیا اور اس سے مقابلہ کرنے لگا۔ جیسے تیسے اس نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا۔ ان کے بھاگنے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے ہونٹ کے دائیں جانب سے خون نکل رہا تھا۔ ٹانگوں اور کمر پر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت ان کے پاس کھیتوں میں بھی کوئی نہ تھا، اس وجہ سے کسی کو اس لڑائی کا پتہ نہ چل سکا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کا پڑوسی تاج دین بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ ارے کرمو، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا حالت ہوئی ہے تمہاری؟ کچھ نہیں، بس پتہ نہیں کہاں سے 3 لوگ آ گئے اور لڑنے لگے۔ بس میرے رب نے ہی مجھے ان سے بچا لیا۔ تمہاری کسی سے دشمنی ہے کیا؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نہیں، میری کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ ابھی تم سوال جواب پوچھنا بند کرو اور میری مرہم پٹی کرو۔ درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں میرے جسم میں۔ رکو، میں گھر سے مرہم پٹی لے کر آتا ہوں۔ دیسی مرغی کی یخنی بنائی تھی، وہ بھی لاتا ہوں تاکہ تمہیں درد سے سکون ملے۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں چیزیں لے کر آ گیا۔
मरहम पट्टी करने के बाद उसने उसे यखनी पिलाई। यखनी पीने के कुछ देर बाद करमू गहरी नींद में चला गया। उसने अच्छे से जब इत्मीनान कर लिया कि वो अब नहीं उठेगा तो ताजदीन उठा और घर में उसने निजासत फैला दी, जिससे रूहानी हिसार टूट गया और घर चला गया। साधु की शक्ति जिसने ताजदीन का जहन काबू किया हुआ था, फौरन उसने उसके जहन को छोड़ा और करमू के घर दाखिल हो गई। करमू को मुर्गी के गोश्त की जगह हराम जानवर के गोश्त की यखनी पिला दी थी, जिससे उसके गिर्द हिसार टूट गया। वो शक्ति उसे सोया देखकर मकरू अंदाज में कहके लगाने लगी। अनीला की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। काफ़ी दिनों से खाना पीना भी बराए नाम था। उसके अम्मी अबू काफ़ी आमलों के पास गए, लेकिन कोई फ़ायदा ना होता। वो आमल जाली आमल निकल आते जो खुद डर कर भाग जाते, या वो उसके अंदर मौजूद मावराई मखलूक का मुकाबला ना कर पाते। वो आधी रात को उठकर नींद में चलने लगती, कभी अचानक रोने लग जाती। आज भी उसके अब्बू एक आमल को लेकर आए। आमल को अनीला के पास छोड़कर वो खुद साइड पर बैठ गए। उन्होंने कभी किसी आमल के पास अनीला को अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि गैर मर्द को अपनी जवान बेटी के पास अकेला छोड़ना इंतहाई गैर मुनासिब समझते थे, क्योंकि शैतान का कोई भरोसा नहीं होता कब हावी हो जाए। आमल ने अनीला को सामने बिठाया और ख़ुद भी पास बैठ गया। फिर पढ़ाई करने लगा कि अचानक अनीला की आंखों की रंगत सुर्ख हो गई, बाल खुल गए और चेहरे पर शदीद गुस्सा दर आया। गुमान होता था कि जैसे वो आंखों से ही कच्चा चबा जाएगी। क्यों बुलाया है मुझे? वो भारी खौफनाक मर्दाना आवाज़ में बोली। आमल ने उसके गिर्द हिसार कायम कर दिया था, इसलिए वो हिसार से बाहर नहीं आ सकती थी। कौन है तू और क्यों इस लड़की को तंग कर रही है? आमल ने गर्जदार आवाज़ में कहा। तुझे इससे क्या, तू जा यहाँ से अपना काम कर। उसका जवाब सुनकर आमल ने आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। वो बेचैन होने लगी, फिर उठकर हिसार के गिर्द चक्कर काटने लगी। कोई मंत्र पढ़ती जाती और चक्कर काटती जाती। जैसे हिंदू मज़हब में शादी के वक़्त फेरे लेते हैं, वैसे गोल चक्कर वो काट रही थी। आमल को पढ़ते हुए बहुत वक़्त का दिक्कत का सामना हो रहा था। उसे बहुत पसीना आने लगा। बहुत मुश्किल से वो पढ़ रहा था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना आज का दिन तेरा आखिरी दिन होगा। और वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगी और फिर अचानक ही बेसिद्ध होकर गिर गई। आमल ने भी पढ़ना बंद कर दिया। उसका सांस फूल गया था और सर से पैर तक पसीने में भीग गया। अनीला के वालिद, जो खामोशी से सब देख रहे थे, अपनी बेटी को ऐसे गिरता देखकर तड़प उठे और फौरन उसे उठाने के लिए आगे बढ़े। उन्हें यूँ तड़पता देखकर वो फूले हुए सांस के साथ बोला, आप फिक्र मत करें, ये कुछ देर के बाद होश में आ जाएगी। और हाँ, ये मामला मेरे बस से बाहर है। वो एक हिंदू जिन है और बहुत ताकतवर है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह आपकी मदद करे, आमीन। आप ऐसे किसी को नहीं जानते हो जो हमारी मदद कर सके। अनीला के वालिद बहुत आस से बोले। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें। ये कहते ही वो जान छुड़वा कर भागा। करमू को शादी की शक्ति और उसके घर से उठाकर उनके पास ले आई थी। उसे जब होश आया तो वो खुद को एक अनजान जगह देखकर हैरान रह गया। उसने जहन पर बहुत ज़ोर दिया कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। उसे इतना बस याद था कि गुंडों की लड़ाई के बाद वो घर गया था और उसके पड़ोसी ने उसे यखनी पिलाई थी, और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। थक हार कर वो खामोशी से बैठ गया। फिर उसने जिक्र करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। जब उसे याद करने पर भी अल्लाह का कोई कलाम याद नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उफ़! वो सर पकड़ कर बैठ गया।
कहीं ये सब उस साधु का किया धरा तो नहीं। मेरा उस्ताद भी यहाँ नहीं। वो काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए कहीं गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और साधु अंदर आ गया। उसने धोती ज़ेबे तन की थी, ऊपरी जिस्म कपड़े से आज़ाद था, सर पर कोई बाल नहीं थे। उसे यूं सर पकड़े देखकर वो तंदिया अंदाज में हंसा। कैसे हो हटू, कहाँ से हो, तुम्हारा गुरु आया नहीं बचाने? उसने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ुबान को दिमक आ गई है क्या? वो बस उसे घूरे जा रहा था। तुम्हारी आंखों में अभी इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे भस्म कर सको। हाँ, मैं चाहूँ तो ज़रूर तुझे भस्म कर सकता हूँ, वो बहुत मगरूर अंदाज में बोला। तुम्हारी वजह से मेरी चेली मर गई। दिल तो मेरा यही था कि तुझे मार डालूं, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना तुझे शैतान के मानने वालों में शामिल कर दूं। इससे वो मज़ीद मुझसे खुश हो जाएगा। अगर तू ज़िंदगी चाहता है तो तुझे मेरा चेला बनना होगा, वरना वो हाल करूँगा कि मौत मांगोगे लेकिन मिलेगी नहीं। तुम जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, वो बोला। मैं तुझे सोचने के लिए कल रात का वक़्त दे रहा हूँ। वो ये कहते ही दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कल भी मेरा जवाब यही होगा। पीछे से कर्मों की आवाज़ आई। वो अनसुनी करता हुआ बाहर निकल गया। कर्मों को वहाँ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। साधु रोज़ उसे किसी न किसी चीज़ का लालच देता, कभी मालो दौलत का, कभी औरतों का, लेकिन कर्मों की हाँ नाम में ना बदली। आज भी साधु ने उसे बेशुमार लालच दिए थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। आखिर तंग आकर वो गुस्से से बोला, ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि तू मौत मांगेगा, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगी। उसने उसे गंदगी के ढेर में फेंक दिया, जहाँ जगह जगह इंसानी गंदगी के ढेर के साथ साथ खून और गोश्त की बदबू भी शामिल थी। जा बजा हड्डियाँ भी बिखरी थीं। उसका दिल ख़राब होने लगा। बदबू ने उसका बुरा हाल कर दिया था। कुछ देर तक नाक पर हाथ रखा, लेकिन फिर सांस लेना महाल हो गया तो हाथ उठाना पड़ा। फिर उसे उल्टियाँ आने लगीं। कह कर करके मैदा भी खाली हो गया और वो नढाल होकर एक साइड पर बैठ गया। तागोश काफ़ी दिनों के बाद आज यहाँ अनीला के सामने आया। उसकी हालत देखकर वो बहुत परेशान हुआ। अनीला, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुमने क्या हालत बना रखी है? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम धोखेबाज हो, फराड हो। मेरे साथ आंख मचोली का खेल खेल रखा है। पहले मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, कुछ दिनों से सामने नहीं आए, लेकिन अब तुम कभी साए की शक्ल में डराते हो, कभी मेरे अंदर घुस जाते हो। मेरे माँ बाप मेरी ये हालत देख देख कर अंदर दरगोर हो रहे हैं। कोई अमल नहीं छोड़ा उन्होंने, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ से मेरा इलाज ना करवाया हो, वो रोते रोते बोल रही थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। वो रोते बिलखते और उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। फिर घुटनों के बल बैठकर हाथों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो आया ही नहीं, बल्कि मुझे तो किसी आमल ने कैद कर लिया था। मैं तो बहुत मुश्किल से उसकी कैद से रिहा होकर आया हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कैसे तुम्हें तकलीफ़ दे सकता हूँ? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर सकता हूँ। तुम बस इतना करो कि मेरी जान छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो आंसू पूंझते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। मैं अब तब ही आऊँगा जब सच्चाई का मुझे इल्म हो जाएगा। पीर करमदीन के पास आज एक आदमी अपनी औलाद के सिलसिले में बात करने आया था। क्या बताऊं पीर साहब, मेरा बच्चा दिन ब दिन हाथों से निकलता जा रहा है। बहुत नाफरमान है, ना नमाज पढ़ता है ना कुरान। कुछ कहूँ तो आगे से बदतमीज़ी करता है। वो बहुत पशेमान था। उसकी बात सुनकर वो गोया हुए। दर हकीकत जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक़्त से उसकी तरबियत का वक़्त शुरू हो जाता है। हत्ता कि माँ बाप को खुद की भी तरबियत करनी शुरू कर देनी चाहिए,
क्योंकि बच्चा हमेशा वो काम करते हैं जो माँ बाप को करता देखें। अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि औलाद नमाज और कुरान पढ़े तो पहले खुद उन्हें पढ़कर दिखानी होगी। बच्चे गाली गलोच मत करें तो माँ बाप को खुद भी उससे एतराज़ करें। और सबसे अहम बात रिज़्क़ हलाल है। हराम की कमाई से बच्चे भी हराम का कामों की तरफ मतवज्जा होते हैं। शराब, जुआ और ज़ना जैसी बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। वो तो पैसा टिकता भी नहीं, किसी बीमारी या नुकसान की सूरत में निकल जाता है। ना उस कमाई का सदका खैरात कबूल होता है। तो बच्चों को शुरू से ही उन चीज़ों की जानब मतवज्जा करें और ध्यान रखें कि बच्चे कैसी सोबत में बैठते हैं। बाकी उस पर सख्ती नहीं करनी, उसका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा वो बागी हो जाएगा। आप वैसा रवैया अख्तियार रखें जैसा मैं रखने को कहूँगा। पानी दम करके देता हूँ वो उसे पिलाएं और हफ्ते में एक बार उसे मेरे पास लाना शुरू करें, इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। कई दिनों तक करमू को खाना भी ना दिया गया और भूख की वजह से उसे कमज़ोरी होनी शुरू हो गई। आज काफ़ी दिनों के बाद उसे खाना मिला तो हालत कदरे बेहतर हुई। साधु उसे हर सूरत में ज़िंदा रख कर अपने ताबे करना चाहता था। हर तरह के ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहा था, लेकिन सज्जू का फ़ैसला वही था। ज़हन पर ज़ोर देने के बावजूद उसे अल्लाह का कलाम याद नहीं आ रहा था। आज उसने जंगल में मौजूद उसे दरख्त के साथ बांध दिया। रस्सियाँ इस कदर मजबूती के साथ बंधी थी कि वो हिल भी नहीं सकता था। रस्सियाँ उसके जिस्म के अंदर धंस रही थी। पूरी रात वो जंगल में बंधा रहा। सारी रात मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद खौफनाक कर दिया। उसका पूरा जिस्म अकड़ चुका था और वो काफ़ी दर्द में मुब्तला हो गया था। वो गनूदगी में था कि अचानक उसे लगा किसी ने उसकी रस्सियाँ खोली हैं। रस्सियाँ खुलते ही वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो वो अपने घर में मौजूद था। सामने ही शहनशाह जिन्नात नज़र आया। उसे आंखें खोलते देखा तो फ़ौरन बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्द तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सका। मुझे शाह साहब ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, लेकिन मैं बर वक़्त मदद नहीं कर सका। कोई बात नहीं, जो आजमाइश हमारी किस्मत में लिखी होती है वो तो काटनी ही है। वो थके थके अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारे पूरे जिस्म पर लेप लगा दिया है, इंशाअल्लाह जल्द ही तुम ठीक हो जाओगे। अब मैं चलता हूँ, मदद की ज़रूरत हो तो बुला लेना। इतना कहकर वो गायब हो गया। अनीला उदासी के साथ बैठी खिड़की से बाहर की जानब देख रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ है। उसने मुड़कर देखा तो एक बिल्ली लाल अंगारा आंखों से उसे घूर रही थी। एक लम्हे के लिए वो डर गई कि अचानक एक और बिल्ली वहां आ गई। कुछ देर तक वो दोनों बिल्लियां एक दूसरे को देखकर आवाज़ें निकालती रहीं। फिर अचानक उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। उनमें एक तागोश था और दूसरी एक कदीम मिस्री शहजादी के भेस में थी। तागोश अनीला को देखकर फ़ौरन उसकी जानिब बढ़ा। ये है वो जिन्नी जो तुम्हें मेरे रूप में तंग कर रही थी, वो बेताबी से बोला। वो जिन्नी तागोश को ज़ख्मी निगाहों से घूरने लगी। बताओ इसे कि वो तुम थी। तागोश सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। हाँ, वो मैं थी और ये सब मैंने उसे तुमसे दूर करने के लिए किया था, क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मेरी तरफ देखता भी नहीं। हर वक्त बस तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है। मैं इससे शदीद मोहब्बत करती हूँ और हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए किसी की भी जान लेनी पड़े। वो अनीला को घूरते हुए बोली, मेरे होते हुए तुम अनीला को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो गुस्से से बोला, अगर अनीला मेरी ज़िंदगी में ना होती तब भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हिंदू और मैं मुसलमान हूँ, समझी तुम।
मैं तुम्हारे लिए अपना धर्म बदल लूँगी, प्लीज़ तुम मेरे बन जाओ। वो तड़प कर बोली। शादी करने के लिए धर्म बदलना जायज़ नहीं, इस्लाम को समझकर ही उसमें दाखिल हुआ जाता है। वो सपाट लहजे में बोला। बस करो तुम दोनों। अनीला जो इतनी देर से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, तंग आकर बोली, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, मुझे तुम दोनों में दिलचस्पी नहीं है, बस मुझे मेरी ज़िंदगी ही जीने दो। खुदा के लिए जाओ यहाँ से, वो चीखते हुए बोली। अनीला मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो कानों पर हाथ रखते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। पीर सैयद हुसैन शाह वापस आ चुके थे और उन्हें ज्ञानी की कारस्तानी का भी पता चल गया था। वो काफ़ी जलाल में थे। आज मैं इस ज्ञानी को नहीं छोड़ूंगा, वो जलाली अंदाज में बोले। वो ज्ञानी आज खुद यहाँ आएगा, ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि अचानक करमू को बाहर शोर सुनाई दिया। वो बाहर निकलने ही लगा था कि शाह साहब कमरे से बाहर आ गए। तुम मेरे साथ चलो। वो घर से बाहर निकले। उनका घर कदरे सुनसान जगह पर था और गिर्द काफ़ी खाली जगह थी। वो ज्ञानी वहाँ खड़ा गुस्से से उन्हें घूरने लगा। तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, तू नहीं जानता तेरा पाला किससे पड़ा है। गणेश बहुत गरूर से बोला। तारीफ़ के काबिल सिर्फ़ एक ज़ात है और वो है मेरे रब की, जो अर्श अज़ीम का मालिक है। मैं तुमको अब भी दावत देता हूँ, कुफर की ज़िंदगी छोड़ दो और एक रब की अताअत करो। तुम क्यों अपना मज़हब नहीं छोड़ देते? ज्ञानी बोला। क्योंकि मैं हक़ पर हूँ, लेकिन तुम ज़रूर अंधेरे में हो। ज्ञानी ने फ़ौरन मंत्र पढ़ा। वहाँ उसकी एक शक्ति बहुत खौफनाक शक्ल में वहाँ आ गई। कोई आम इंसान उसे देखता तो उसे हार्ट अटैक हो जाता। शाह साहब ने कुछ पढ़कर एक फूंक मारी तो वो जलकर भस्म हो गई। अपनी शक्ति का ये हाल देखकर वो गुस्से में पागल हो गया। उसने मंत्र पढ़ा। वहाँ सांप और बिच्छू के ढेर लग गए। शाह साहब ने फिर एक फूंक मारी, वो सब ख़त्म हो गए। उसने फिर हरबा आजमाया। जंगल में तूफ़ान आ गया। दरख्त पौधे सब गिरना शुरू हो गए। सज्जू एक तरफ खड़ा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। शाह साहब ने रब के हुक्म से फिर उसे नाकाम कर दिया और माहौल नॉर्मल हो गया। अब की बार उसने जंगल के तमाम जानवर बुलाकर इकट्ठे कर लिए। वो गुर्राते हुए जानवर शाह साहब के पास पहुंचकर खामोश हो गए और ऐसे लग रहा था जैसे वो उनके ताबे हो गए हों। ज्ञानी हैरान परेशान रह गया कि मैंने बरसों शैतान की परस्तश की है, फिर कहीं जाकर ये सब हासिल किया। ये सब कैसे किया तुमने? मेरी बरसों की रियाजत क्या बेकार थी? तुमने पल भर में सब ख़त्म कर दिया। वो हैरानगी से बोल रहा था। फिर कुछ देर खामोश खड़ा रहने के बाद वो अचानक से बोला, मुझे माफ़ कर दो। वो शाह साहब के कदमों में लिपट गया। मुझे अपना चेला बना लो, मुझे भी अपने धर्म में शामिल कर लो। वो उनके पैर पकड़े हुए बोला। उन्होंने उसे अपने कदमों से उठाया और बोले, क्यों नहीं, मुझे बेहद खुशी होगी अगर एक इंसान मेरी वजह से कुफर को छोड़कर ईमान ले आए। उससे बड़ी नेमत और क्या होगी मेरे लिए। वो बहुत आजिज़ी से गोया हुए। करमदीन गुस्ल का इंतज़ाम करो, वो बहुत पुरजोश अंदाज में बोले। करमू बहुत कम और उसके असल नाम से उसे बुलाते थे। ऐसा तब होता जब वो खुश होते। दूर कहीं काली माता के मंदिर में घंटियां बज रही थी। शैतान अपना नायब मुसलमान होते देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। अनीला के वालिद किसी के तवस्सुत से करमदीन के पास पहुँचे और अब वो उन्हें तमाम सूरत हाल बता चुके थे। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अल्लाह के बाद अब बस आपसे आस है। आप फ़िक्र मत करें, अल्लाह ज़रूर आपकी बच्ची को सेहत अता करेगा इंशाअल्लाह। अपनी बच्ची को अभी और इसी वक्त मेरे पास लेकर आ जाएं। अनीला के वालिद फ़ौरन घर गए, लेकिन जब वो पहुँचे तो अनीला कहीं न थी। पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं ना मिली। वो परेशानी से करमदीन के पास पहुँचे और उनके चेहरे पर हवाइयाँ देखकर करमदीन समझ गए मामला संगीन है।
अनीला के वालिद की बात सुनकर उनके अंदाजे पर मोहर लग गई। आप मुझे कुछ वक्त दें। वो फ़ौरन से अलग कमरे में गए। कुछ देर बाद आए तो उनकी आंखों में सुर्खी थी। उन्होंने अनीला के वालिद को तागोश और उस हिंदू जिन्नी के बारे में बताया। ये सब सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गए। आप फिक्र मत करें, तागोश को मैं जानता हूँ, उसे मैं अनीला से दूर कर दूंगा। असल मामला उस हिंदू जिन्नी का है। अनीला को भी वही उठाकर ले गई है। आप फिक्र ना करें, मैं अल्लाह के हुक्म से उसे छुड़वा लूँगा। आप बस दुआ करें। उन्होंने उनका कंधा थपथपाते हुए कहा।